कुछ ना कुछ साक्ष्य आए होंगे, उसी के आधार पर गिरफ्तारी हुई होगी। तो आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ ऑल दिस, बट आई कैन टेल यू कि आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड और नॉट आई डोंट हैव एनी रीजन टू बी हैप्पी और अनहैप्पी। खुश और ना खुश होने का मेरा व्यक्तिगत कोई कारण नहीं है। आई ओनली वांट दैट ट्रूथ मस्ट कम आउट कि what is the mystery behind this सुशांत केस, that mystery has to be unfolded। वो रहस्य पर से पर्दा उठना चाहिए और ये चीजें उसमें एक पहला कदम। सीबीआई की जांच एनसीबी की जांच से जुड़ी हुई नहीं, सब चीजें आपस में मिली हुई हैं। जैसे सुशांत की केस करते हैं, बात करते हैं, मामले की बात करते हैं, तो दिशा सालियन के मामले की बात क्यों हो रही है? सीबीआई उसकी भी जांच क्यों कर रही है? हमने न्यूज में देखा है। तो सीबीआई वो मामले की जांच कर रही है, सीबीआई दिशा सालियन के मामले की भी जांच कर रही है, और उसी तरह से रिया चक्रवर्ती का नाम इस केस में है, उस पर सीबीआई काम कर रही होगी, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये तो स्पष्ट हो गया ना कि ड्रग पेडलर्स के साथ रिया चक्रवर्ती के संबंध थे। अब वो कह रहे हैं कि हम इनके लिए, उनके लिए, किसके लिए, क्यों ड्रग ले रहे थे। अब कहने को तो हम भी कोई बहाना बना सकते हैं, और वो बेदाग नहीं है, ये बात तो स्थापित हो गई ना। But the way they were trying to divert the case, Riya and a family were trying, and her friends. देखो, I don't want to make any comment on this. My point is कि now Mumbai police was not, मतलब the general perception is that Mumbai police was not fair in its investigation, and Bihar police was not allowed to carry out investigation. They created hurdle, and you know the whole story how they behaved with Bihar police. So I don't have to say anything about this. My only thing is that was the only option left to the court also. Bihar police couldn't do it because Mumbai police didn't want that Bihar police should handle this case, investigate this case, and Mumbai police has lost its faith, reliability. It was not doing anything. So the only option was that case should have been investigated by CBI, and Honorable Supreme Court already has given its verdict, and by order of Honorable Supreme Court, case has been handed over to CBI. So there should not be, I shouldn't make any comment. CBI is working, its style is different, it's working in a very professional manner. So truth has to come out. And Riya Chakravarti, about whom you are talking, now Riya Chakravarti is totally exposed in the sense that she had connection with drug peddlers. That has been established. This is why she has been arrested. और भी बड़े नाम हो सकते हैं। देखो, it's very difficult to presume anything, and one should not presume anything because all professional investigating agencies are now looking into this matter. So it's not wise to presume anything, but gradually things are happening. Now people are very excited to know what further, and your question is also very right. You are also very excited to know what in future and who is going to be arrested in future. So I shouldn't make any comment on this, but I am telling you now this mystery will be unfolded by CBI also, and truth will certainly come out, and people responsible behind this. Sushant, बड़ी मछली पकड़ी जाएगी। तो हम उस पर क्या कमेंट करें? एनसीबी कह रही है तो ड्रग का ऐसा धंधा है जिसमें बड़े बड़े लोग हैं। ये तो पूरा, छोटे लोग ड्रग का धंधा छोटे स्तर पर करते हैं, और बड़े स्तर पर जो ड्रग का धंधा होता है, इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं, उसमें तो बड़े बड़े लोग होते हैं। तो जो लोग इन्वॉल्व होंगे सब पकड़े जाएंगे। ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया गया है, ऑफिशियली कंगना रनौत को अरेस्ट कर लिया गया है। ये आप ही से हम सुन रहे हैं। आई डोंट हैव एनी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हु हैज बीन अरेस्टेड, हु हैज नॉट बीन अरेस्टेड, बट दिस इज द इन्फॉर्मेशन व्हिच आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द मीडिया ओनली, that Riya Chakravarti is arrested by NCB in drug peddling, drug case. So एनसीबी के डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया है कि रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, फाइन। This much NCB must have found some evidence against her. उसके खिलाफ कुछ एविडेंस मिला होगा, तब तो अरेस्ट किया गया है। सर, वन लास्ट क्वेश्चन कि आपने एक बार बस औकात की बात की तो इतना हंगामा मचा था उसी पार्टी के। देखिए, औकात का मतलब होता है स्ट्रेचर। तो मैंने कहा था, आई डिडंट वांट टू हर्ट हर और एनीबडी। माय इंटेंशन इज नॉट, मेरा संस्कार ऐसा नहीं है कि मैं किसी को दुखी करूं। माय पर्पस वाज नॉट टू हर्ट एनीबडी, टू ह्यूमिलिएट एनीबडी। इट वाज ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कि स्ट्रेचर उनका नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करें। उसको हमारे यहाँ औकात बोलते हैं भोजपुरी में। उसका निगेटिव सेंस ले लिया गया, निगेटिव अर्थ ले लिया गया, मीडिया पर ट्रोल किया गया। मैंने उसी समय कहा कि भाई, माय इंटेंशन वाज नॉट टू हर्ट और ह्यूमिलिएट एनीबडी।
तो हमारा ये पर्पस ही नहीं था. आई हैव नेवर डन दिस इन माय लाइफ. आई हैव नेवर हर्ट और ह्यूमिलिएटेड एनीबॉडी इन लाइफ. वही नेता जो आप पे सवाल खड़े कर रहे थे, वो एक लड़की को हरामखोर बोलते हैं, नॉटी बोलते हैं, वही संजय राउत. देखिए, सबका अपना अपना संस्कार है. हाउ कैन आई कमेंट ऑन दिस? I don't have, authority, and I don't have this is authority to comment on any political person. That is not my business. कि वो किस पर क्या बोलते हैं तो पूरा देश देख रहा है, पूरा देश सुन रहा है. मेरे खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की उन्होंने, एक महिला के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की उन्होंने, बिहार पुलिस के खिलाफ बहुत ही अशोभनीय बात कही. मैंने कभी कोई प्रतिक्रिया दी? मैं क्यों प्रतिक्रिया दूंगा? वो बहुत बड़े हैं, उनका स्ट्रेचर, उनकी औकात हमसे बहुत बड़ी है. हम उन पर कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? आई कांट. कहीं ना कहीं बिहार पुलिस ने जो एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन किया उसके बाद ही कहीं ना कहीं सच्चाई सामने आई. नहीं, आप बताइए कि दिस इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन विच डेट? डू यू रिमेंबर? ऑन 14th of June. एंड आफ्टर 14th of June व्हाट हैपेंड? टिल 20th एवरीथिंग वाज फिनिश्ड, साइलेंट. Mumbai print media, electronic media, Sushant was out of news after 20th. Within 1 week, everything, was settled. Yes, sir. So, whole problem started when I registered a case here in Patna. After registration of case in Patna, on 26th, on 25th, my team was, 4 members team was dispatched for Mumbai for further investigation on 27th. Then the whole hangama started.